Hello friends, welcome to the new video of accountancy. Today we are going to learn about accountancy concept, conventions and principles. This video is extremely useful for BBA, MBA and BCom basics of accountancy, and it is also helpful for 11th and 12th commerce students. Okay, so now let's get started. Today we are going to talk about accountancy concepts. So the first concept over here is business entity concept. So what does business entity concept means? The business entity concept says that a business is treated as a separate legal and accounting entity from its owner or its stakeholders. So all the financial transactions that are recorded from the perspective of a business are and not from the individual owners. तो आज हम बिजनेस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो एक्चुअली ये क्या होता है? तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जो ओनर है और जो बिजनेस है ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक बिजनेस है वो एक सेपरेट लीगल और अकाउंटिंग एंटिटी है और एक ओनर वो एक सेपरेट लीगल और एंटिटी है। तो कोई भी ओनर के ट्रांजैक्शन बिजनेस में नहीं लिखे जा सकते और बिजनेस के ट्रांजैक्शंस ओनर्स में नहीं लिखे जाते, तो दोनों के अकाउंट अलग रखे जाते हैं। नाउ व्हाई इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सो इम्पोर्टेंट इन अकाउंटिंग? सो देयर आर 3 पॉइंट्स. फर्स्ट, इट क्लैरिटी इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. सो whenever there are personal expenses of owner like buying a car, buying a house or buying a land, etc., these purchases are not mixed with the business expenses. Business expenses are separate and owner's expenses are separate. Second, legal and tax compliance. So it helps in accurate tax filing and accounting like legal accounting. So what does it actually mean? So as the business accounts are kept separate and the owner's account are kept separate, so whenever there is a filing for the tax, so for the business tax they are paying taxes separately and the owner pays taxes separately according to his income. But the business's income is not his income, so he will not pay tax for the business, right? So both the business firm pays tax separately and the owner pays tax separately. Now the third importance of business entity concept is performance evaluation. So performance evaluation, what does it do? So it enables a clear analysis of business profitability and financial health. So how does it does that? As owner's expenses, their personal expenses are different and business expenses are different. So we can clearly see if the business is doing profit or is it working in loss. Owner may be buying new houses every year, new land every year, but business might not be making profit, or business may be in full profit but the owner's financial condition might not be it. So we can say that they have a clear performance evaluation of the business and the owner as separate. Okay, तो अभी हम बात करेंगे कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इसके 3 पॉइंट्स है। सबसे पहला है क्लैरिटी इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, तो ओनर के जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं वो हम लोग अलग रखते हैं, बिजनेस के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं वो हम लोग अलग रखते हैं, तो दोनों में कुछ भी मिक्स नहीं होता। तो ओनर भले ही अपने लिए गाड़ी खरीदे, बंगला खरीदे, जमीन खरीदे, वो बिजनेस के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में नहीं दर्ज होता। इसकी वजह से है ना, उसके जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है वो अलग रखते हैं। तो उसकी वजह से और क्या होता है, तो लीगल और टैक्स कंप्लायंस। तो कभी भी बिजनेस को जब भी टैक्स भरना होगा, लीगली उसको कोई भी काम होगा और उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स लगेंगे, तो वो हम लोग अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ओनर्स का कुछ भी है ना इनकम या एक्सपेंसेस उसके अकाउंट में तो लिखा नहीं है, उसमें सिर्फ बिजनेस के एक्सपेंसेस और इनकम्स के बारे में लिखा हुआ है। और तीसरी बात है वो है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। तो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन कैसे कर सकते हैं? तो हमें पता है कि है ना, बिजनेस एक अलग चीज है, ओनर अलग चीज है। आपने सुना होगा कि कोई बिजनेसेस लॉस में चल रहे हैं, उनके ओनर्स है वो नए बंगले खरीद रहे हैं या फिर है ना नई जमीन खरीद रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिजनेस एक अलग एंटिटी है और ओनर एक अलग एंटिटी है।
दोनों के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अलग है, तो हम लोग अच्छे से पता कर सकते हैं कि बिजनेस में एक्चुअली प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट्स थे business entity concept in accounting. So now we will to understand it better, I will provide an example. Imagine if you are running a startup as part of your MBA project and you invest 50,000 rupees of your personal money into the business. That means you have indulged capital into the business, right? So according to the business entity concept, 50,000 is recorded as a capital contributed by the owner and not as an income. Business has not earned this. It has taken that capital from the owner. Okay. And if you buy a laptop in this for the same business, you buy a laptop, but you use it for a personal use, and you buy a computer for the business use. The computer will be recorded in the balance sheet of the business, but the laptop will not be recorded because laptop is for your personal use and computer is would be for business use, right? तो अभी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। तो आप इमेजिन कीजिए कि आपने एक नया बिजनेस खोला अपने एमबीए प्रोजेक्ट के लिए और उसमें अपने 50,000 रुपीज जो है वो इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या है कि 50,000 रुपीज है वो आपकी इनकम नहीं है, आपकी हेरिडिटरी कुछ पैसे नहीं है। ओके, वो एक कैपिटल है जो उसके ओनर ने बिजनेस में लगाया है, एक पैसा है जो ओनर ने लगाया है, वो उसकी कोई इनकम नहीं होगी। और समझो कि आप एज एन ओनर दो चीजें खरीदते हैं, एक लैपटॉप खरीदते हैं, एक कंप्यूटर खरीदते हैं। ओके, तो जो लैपटॉप है वो आपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा है और कंप्यूटर जो है वो बिजनेस के कामों के लिए खरीदा है। तो कंप्यूटर का जो मेंशन होगा वो बिजनेस के बैलेंस शीट में होगा, लेकिन लैपटॉप का मेंशन बिजनेस के बैलेंस शीट में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो आपका पर्सनल ये थिंग है और वो आपके बिजनेस के अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा। तो क्योंकि कंप्यूटर बिजनेस के लिए यूज होता है, इसीलिए वो बिजनेस के अकाउंट्स में लिखा जाता है। सो आर वी क्लियर विद दिस बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। So now what does the going concern concept means? This concept assumes that a business will not be liquidated or closed down in the near future. As a result, assets are recorded as the historical cost and not in the liquidation value, and liabilities are expected to be paid in normal course of business. So ये going concern concept क्या होता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस जो है ना, हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि बिजनेस 1 साल के अंदर बंद नहीं होने वाला, वो चलेगा 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, 50 साल चलेगा, आराम से एक लंबी जिंदगी होने वाली है बिजनेस की, 1 साल के अंदर वो बंद नहीं होने वाला। इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग जो हमारे एसेट्स है वो हम लोग है ना, इसीलिए उसकी जो बाइंग प्राइस है उसके प्राइस पे लिखते हैं, ना कि उस प्राइस पे लिखते हैं कि है ना हमने वो बेचेंगे तो हमें कितना मिलेगा, उस प्राइस पे नहीं लिखते कि उस एसेट को हमने जिस प्राइस पे बाय किया है उस प्राइस पे लिखते हैं। और हम लोग ये भी मान के चलते हैं कि जो ये लाइबिलिटीज हमने ली है कुछ लॉन्ग टर्म है जो हम लोग 1 साल के बाद भी पे करेंगे, और कुछ शॉर्ट टर्म है जो 1 साल के अंदर, सारी की सारी लाइबिलिटी हम लोग 1 साल के अंदर पे नहीं करने वाले। ओके, नाउ वी विल लुक एट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। सो देयर आर 3 इम्पोर्टेंस। फर्स्ट इज एसेट वैल्यूएशन. Assets like machinery or building are depreciated over their useful life and not sold out immediately. Okay, so whenever you buy a machinery or a building for your business, you are not going to sell it in the course of one period, right? You will be using it for the, let's say, 10 years or 15 years. If you might add the subtract the depreciation you have put on it, but you will not be selling it completely within the year. Okay, so this is one thing, asset valuation. Second is liability management. As I said earlier, long term liabilities are not treated as immediately payable. You do not treat that the loan for, let's say, 1 crore rupees which you have taken for your business, you have to pay it back within that 1 year, right? You do not have to pay it in the current year. You will keep that loan or use that loan for, let's say, 3 to 4 years, right? And the third is financial stability. It reflects the confidence in business abilities to continue operation, which is vital for investors and creditors. So this concept assumes that we are going to run this business for a long period of time, because of which
investors and creditors have they have an assurance, right? This business is going for a long term, so our money which we have invested in this business, we will get it back eventually. If not now, eventually we will get it back and we will not have to worry about it or losing all of it. Okay, तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की कुछ इंपॉर्टेंस है अकाउंटिंग में, तो उससे हम लोग अभी स्टेट करेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है एसेट वैल्यूएशन। तो आप जब भी अपने बिजनेस के लिए कोई एसेट खरीदते हैं, जैसे मशीनरी खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, तो इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपका बिजनेस तो 10-15 सालों तक चलने वाला है, तो उस टाइम तक है ना ये मशीनरी और बिल्डिंग्स भी चलने वाली है। ठीक है, तो फिर है ना आप है ना उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओ कि हाँ भाई इतने साल का इसका लाइफ स्पैन है, ये इतना इतना थोड़ा वैल्यू कम होता जाएगा, इसे आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, लेकिन आप उसे है ना उसी साल के अंदर बेचने नहीं वाले कि हर साल नई मशीनरी ली और हर साल वही मशीनरी बेच दी, ऐसा नहीं होने वाला है। तो एसेट वैल्यूएशन उससे अच्छा होता है। दूसरा है लाइबिलिटी मैनेजमेंट। जो हमारी जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, जैसे कि आपने समझो 1 करोड़ का कर्जा लिया है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल में बताया, तो है ना आप उसे 2-3 साल के अंतर में पे बैक करोगे किसी भी क्रेडिटर को। आप ऐसे तो नहीं है कि इस साल कर्जा लिया और इसी साल पे बैक करोगे, सारी लाइबिलिटीज आप इसी साल लेके वापस पे बैक तो नहीं करने वाले, करेक्ट। तो इससे जो आपकी लाइबिलिटी है वो अच्छे से मैनेज करते हैं, आप डिसाइड कर पाते हो कि कौन सी लाइबिलिटी का आपको करंट ईयर में पे करना है और कौन सी लाइबिलिटी का आपको लॉन्ग टर्म में पे करना है। ठीक है, थर्ड है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो क्या कि ये भी बिजनेस लंबे समय तक चलने वाला है, तो आपका जो कैपिटल है वो तो इनफ नहीं होगा, आपको इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्रेडिटर्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से उनको एक अश्योरेंस मिलता है कि भाई है ना ये बिजनेस लंबे समय तक चलने वाला है, कभी ना कभी हमें वापस अपने पैसे हमें वापस मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आज जब हमने पैसे दे दिए और 1 साल के बाद ये कंपनी गायब होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, तो उनको एक अश्योरेंस मिलता है। नाउ टू easily understand this concept, here is one example. Suppose you are analyzing the financial statement of any company during your internship. So if the company is a going concern concept, that is all companies are, you will assume that it will continually operate, it will continue its operations, right? It will not just end its operation in 1 year. You will say that at least from now 5 to 10 years this company will continue its operation or longer. So you don't adjust the assets value what they will fetch in a fire sale, right? You will not assume that if we sold off this asset right now in this year at 31st March 2025, what value we will gain. You will not see that. You will say that this company is going to run for a really long time. We will just write its buying price. We will not say that for now at the liquidation what price we will have to say, and you will prepare your budget and forecast your future plans based on it, right? So अभी एक एग्जांपल लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो आप समझिए कि आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको एनालाइज कर रहे हैं, तो आप देखेंगे तो क्या किया ना, आप तो अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के तो ये नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई अगर मैं इस कंपनी के सारे एसेट्स आज के भाव में बेचूं तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, आप उसे रियलाइज तो नहीं करने वाले हो। ठीक है, आप यही समझोगे ना कि अभी ये तो कंपनी है ना और 10-15 साल चलेगी, उससे भी ज्यादा चल सकती है, तो आप ये नहीं ढूंढोगे कि है ना उसको आज बेचूंगा तो है ना मुझे कितने पैसे मिलेंगे या फिर कंपनी को कितने पैसे मिल सकते हैं, आप ये नहीं देखोगे। आप है ना उसको देखोगे कि है ना इसका आगे का बजट क्या हो सकता है, ये कंपनी और क्या प्लान कर सकती है, इसके आगे के स्टेप्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें आगे 10-15 सालों तक और कंटिन्यू करना है, तो आप वो फोरकास्ट करोगे। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ओके, so what does cost concept actually mean? Cost concept states that all assets are recorded in the books of account at their historical cost. Historical cost is at the price at which they are bought at, the amount paid to acquire them, right? Regardless of their current value or inflation. तो ये cost concept है वो क्या state करता है कि हमने जितने भी assets खरीदे हैं तो उनकी जो value लिखी जाएगी हमारे books में वो उसी प्राइस पे लिखी जाएगी जिस प्राइस पे हमने खरीदा है। ठीक है, ना कि उस प्राइस के क्या है ना अभी इसकी मार्केट में वैल्यू क्या चल रही है या फिर है ना इन्फ्लेशन की वजह से कितना बढ़ा है, ये नहीं, जिस प्राइस पे खरीदा था वही प्राइस हम लोग
लिखने वाला है। आपको पता है कि गोल्ड के प्राइस इतने फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो आपने समझो कि कंपनी ने है ना 10 साल पहले गोल्ड खरीदा होगा, या फिर आपने 10 साल पहले गोल्ड खरीदा होगा, तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है ना वो खरीदी हुई प्राइस लिखी जाएगी, न कि आज की प्राइस लिखी जाएगी कि है ना गोल्ड इतना बड़ा है तो फिर है ना इस वैल्यू का गोल्ड है। नहीं, आपने जो खरीदा था उस वैल्यू पे आप लिखोगे। तो दिस इज द कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। Now we will see what importance does this concept provides. So there are three importance. First is objectivity. Historical cost is verifiable through invoices, receipts, or making financial records more reliable. So what does it actually mean? As we have written the price at which we have acquired the assets, at which we have bought the assets. While buying the assets, we have received an invoice or let's say vouchers, etc. So we actually have a proof that at this value, at this time, at this value, we have acquired these assets, right? So this verifies all the financial records, that your financial records are true. Second is consistency. It ensures uniformity in asset valuation across accounting periods, right? Let's say for the gold price is fluctuating every now and then. So the price that you have written at means you have bought the gold for last year, so you will write at the price which you have acquired, and in this year's balance sheet, if you have not purchased or sold any further of the gold, you will write the same amount, right? So there is a consistency in the gold. You will not write the amount in which they are at the current market price. No, you will write the amount at the point you have bought them. And the third point is simplicity. It avoids frequent revaluation, which can complicate financial reporting. So whenever you revalue, you will say, oh no, the gold prices are high again. Now I will revalue and write it again. So it confuses a lot, right? Investors confuse a lot. All the users of financial account, they get confused a lot of how is this price fluctuating so much. Right? So it maintains a consistency, it maintains a simplicity. Yeah, according to this, if you have bought more gold, and according to this concept, the man in the who is reading that financial record will say, yeah, this company has bought more of this asset and sold off this asset, right? They will not get confused by the inflation and all. तो इस कॉन्सेप्ट के है ना 3 पॉइंट है, 3 इंपॉर्टेंस है। तो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या है कि है ना जितना भी हमने जो अमाउंट लिखा हुआ है हमारे बैलेंस शीट में, हमने जो अमाउंट लिखे हुए हैं, हर एक का एक प्रूफ है। आपने जब भी वो एसेट खरीदा तभी उसका बिल होगा, इनवॉइस होगा, वाउचर्स बने होंगे, एक्सेट्रा जो भी बना होगा, आपके पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होगा कि हाँ भाई हमने ये एसेट है वो इसी वैल्यू पे खरीदा हुआ है, और उससे अपने के जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है वो ट्रू रहते हैं उनके हिसाब से। दूसरा है कंसिस्टेंसी। आप जिस वैल्यू पे आप जो एसेट है वो बाय करते हो, वही वैल्यू आप हर साल लिखोगे, तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी कि हाँ भाई हमने अभी कुछ नया परचेस नहीं किया, नया सेल नहीं करेगा, उससे आपको पता चलेगा, एक कंसिस्टेंसी रहेगी। और उसकी वजह से क्या होगा, तीसरा पॉइंट सिंप्लिसिटी होगी कि आपको एक अच्छे से पता चलेगा। जब तक आप उसमें कुछ और सेम एसेट बाय नहीं करते हो या फिर उसमें से कुछ सेल नहीं करते हो, तब तक वो नंबर्स तो चेंज होने वाले हैं नहीं, और उससे हमें पता चलेगा हाँ भाई इस साल कंपनी ने ये एसेट ज्यादा बाय किया या फिर ये एसेट को सेल किया है, तो उससे कंसिस्टेंसी रहती है। अगर वो नहीं होता तो क्या आप हर साल कंफ्यूज रहते हैं कि आपने बाय किया है कि नहीं किया है, या ये जो नंबर बढ़ा या घटा है वो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की वजह से किया हुआ है या हमने कुछ नया परचेज किया है, वो कंफ्यूजन नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट की वजह से है ना वो कंफ्यूजन नहीं होगा। And now at last we will see the example of cost concept. So let's suppose that company buys a building of 50 lakh rupees in 2020, okay, and even if its market value rises to 80 lakh rupees in 2025, the building will still be recorded at 50 lakh rupees in the financial statement. In the balance sheet, in the fixed assets, the building would be recorded in 50 lakh rupees and not 80 lakh rupees. This is what the cost concept does. Unless it is revalued, which is explicitly allowed according to some
accounting standards, right? You need to sometimes you need to revalue something according to these accounting standards. So unless it is compulsory that you have to revalue it every year, the amount would still remain 50 lakhs, right? तो इसको समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं. समझिए कि आपकी कंपनी ने 2020 में 50 लाख का जो है बिल्डिंग खरीदा हुआ है. तो आप अभी ये 5 साल हो गए, हाँ, तो इन्फ्लेशन की वजह से अभी उस बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू है वो 80 लैक्स हो गई है. अभी आप बैलेंस शीट में 80 लैक्स तो लिखोगे नहीं. इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपने 50 लाख पे बिल्डिंग खरीदी है तो आप बैलेंस शीट में 50 लैक्स ही लिखोगे. आप ये नहीं लिखोगे कि 80 लैक्स की है, आप यही लिखोगे कि 50 लैक्स की है. जब तक है ना आपको लीगली रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको हर साल उस एसेट को रीवैल्यू करना है, हर साल आपको देखना है कि इन्फ्लेशन की वजह से इसकी प्राइस कितनी हुई है, तब तक आप उसे रीवैल्यू नहीं करोगे जब तक लीगली रिक्वायर्ड ना हो किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा. तो एज अ बिल्डिंग उस पर तो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लगेगा. तो आपने 50 लैक्स की खरीदी है तो 50 लैक्स की ही लिखोगी, 80 लैक्स आप नहीं करोगे उसका. So with this today our video gets concluded. So if you love this video, please like this video, share this video with your friends to understand more about accounting concept, right? Comment your expertise and please subscribe my channel. Thank you.